like उनको कैसे भूल गए? वो भी तो बैठी है ना यहाँ, वो हर सेक्टर में काम करती है, तो फिर दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखना है ना। आप बोल क्या रहे? जेंडर इंक्लूसिव भी है और आप आए और बहुत सारी राज्य स्तर से नियमों को सीखने के लिए काम के घंटे बनाए जाएंगे। बहुत सारे मिलता है, शिक्षण एम्प्लॉयमेंट आज भी जिंदा है। शब्द को नॉर्मल कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी को खत्म कर रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देना। अगर खुद ही ऐसे कानून ला रही है तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो सरकार सेक्टर बैंक की नहीं है जिसको AIBA के साथ ही लेके आगे बढ़ना चाहते हैं या USCU इसको आगे बढ़ाना चाहेगा। ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है सबकी, जो मिला हुआ है, जिनको मिला हुआ है। जी सर, क्या नाम? 1886 मेरा नाम सुजित राजू, जब उनके केरला से। तभी से उनका लाल झंडा बना। ये कहते हुए कि ये हमारी सफाई है, उसके 3 साल के बाद 1889 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे ट्रेड यूनियनों की एक मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 1886 Not actually, we have conducted so many protest and demonstrations raising our demands. So far, there is no intervention from the government either or from the management side. That is why we forced to come to Delhi to demonstrate our protest here. It's a demonstration. This Dharna is conducting in the banner of All India Private Sector Bank Union Cell of AIBA, which includes 10 banks, private sector banks, old generation private sector banks and new generation private sector banks also coming. We are having very fundamental burning issues. We are demanding all the private banks have to nationalize. That is one of our demand. And the second demand in private sector banks, there is no permanent recruitment. We are demanding for the permanent recruitment in the private sector banks. Most of the employees are working in the private sector banks, post company employees. That means contract employees. So we demanding the cost company employees has to be converted to the permanent employees. That is another demand. And one old generation private sector bank is here, Catholic Saving Bank. Previously its name was Catholic Saving Bank. Now it is CSB Bank. In CSB Bank, foreign investors came in CSB Bank, and the majority of the shares now holding by the Fairfax company. So ultimately, what happens? The character of the bank also changed, and employees, their eligible settlements, bipartite settlement has not been implemented so far. So they are getting only 10th bipartite settlement. In all over India, all bank employees are getting additional 2 bipartite. So we are demanding for the early wage revision in CSB Bank. Similarly, in Federal Bank, it's a very good bank and growing bank. But in bank, there was lot of attacks against the trade union, and 2 of the trade union leaders were dismissed from the bank with the very flimsy reasons and violating the labor laws also. We have been demanding for the reinstatement of those leaders, but so far management has not agreed for that. So that is another demand. Likewise, so many demands we are raising. The employees, those who worked for the bank for a long years, after 16 years, they are having the pension. But in the we are demanding for the pension updation before the government and IBA also. But in the 12th bipartite settlement, IBA has and central government also agreed to give some amount as an ex gratia for the retired employees. But that is implemented only in the public sector bank, not in the private sector bank. I am not telling in all private sector, some banks were implemented. Nainital Bank, Federal Bank implemented. But most of the private sector bank has not implemented that
ex gratia for retirees. So many issues we are having. That's why we are holding this protest demonstration. आपने इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि जंतर यह मंतर कानून तय हुए पहले भी काफी कि एयरलाइन के जो मुलाजिम नहीं हैं, मांगे पायलट हैं, और आज कौन सी नई मांग देखिए, ये कहना कि कौन सी मांग पूरी हुई आज के समय में, जिस समय जो भारत सरकार की आज जो नीतियां हैं, वो जो इवन सरकारी इदारे हैं उनको भी प्राइवेटाइज करने की नीति जो है आज सरकार की है। और इसी दौर के अंदर हमारी मांग है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं इनको राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए। आज जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टरों के अंदर विदेशी पूंजी जो है उसका आगमन बढ़ रहा है, विदेशी हाथों में जो है ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक जा रहे हैं और इससे जो है जो हमारी आम जनता है उसका कोई हित होने वाला नहीं है। क्योंकि जब ये विदेशी पूंजी के हाथों में जाएंगे तो मनमाने ढंग से जो है अपने वो चाहे सर्विस चार्जेज हो या सेवाएं हो एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर और लिमिटेड लोगों तक जो है वो उसको सीमित रखेगी। एक हमारी मांग ये है, आजीवन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के अंदर जो है वो भर्ती की बहुत अधिक आवश्यकता है। ब्रांचेस के अंदर स्टाफ जो है वो पर्याप्त नहीं है और इसकी वजह से आज सेवा उनको देने में ग्राहकों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि पर्याप्त रोजगार जो है इन बैंकों के अंदर होना चाहिए। दूसरा, वहाँ ठेके पर अधिकतर एम्प्लॉइज को रखा जाता है, C2C पोस्ट टू कंपनी, यानी उसके तहत जो है अधिकतर एम्प्लॉइज वो ठेके पर उनको जो है बैंकों में भर्ती किया जाता है। जहां एक तरफ परमानेंट एम्प्लॉइज अगर सैकड़ों में हैं तो हजारों में जो है वो ठेके पर वहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि उनको जो है रेगुलराइज किया जाए। छोटी छोटी बातों पर जो है अनुशासन के नाम पर आज एम्प्लॉइज को प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिए जाते हैं और एक्शन भी डिसमिसल तक के लिए जाते हैं। और इसीलिए हमारी ये बहुत सी अच्छी मांगे हैं जिनको लेकर के आज हिंदुस्तान के हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक कर्मचारी जो हैं वो आज यहाँ धरने पर मौजूद है। केरला से लेकर के जो है उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, सभी अधिकतर सभी राज्यों से जो है यहाँ हमारे साथी मौजूद है। ये मांगे केंद्र सरकार नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो मांग अगर राष्ट्रीयकरण करना है उनको तो वो केंद्रीय सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकार के अख्तियार में ये नहीं आता है। तो ये केंद्र सरकार से हमारी मांग है।